Good evening, everyone. Hope you all are doing amazing. Welcome back to the Interval Presents 6 Months Mentorship Program. Today we have Ashutosh Kumar, who is robotics trainer, ATL trainer, educational YouTuber, and also secured AIR 5 in Dell Campus Ambassador Season 4. He is going to give us a talk on key highlights of National Education Policy 2020. Thank you, sir, for giving your valuable time for this session. We, Team Interwell, welcome you, sir. Now over to you, sir. Uh, Thank you for this warm welcome. I am very overwhelmed with this. And good evening to all of you, my dear friends and your colleagues as well. Okay, so can I get a hi from all of you? Yes. Can I get some faces? Because I can't be able to just go ahead with my single face, right? Yes. Please come up ahead with some faces. Can I? Yes. Yes, okay, fine. Good evening, everyone. So, as of now, she has already explained about me, and right now I am just uh, going to deal with the kind of the topic that National Education Policy 2020, right? But the thing is, from the very beginning of this session, I want to have some word with all of you. So, I think 21% have already joined, right? Don't worry. Okay, we will go ahead with it. But first of all, I want to know that how many of you are from engineering background. Please just let me know. So okay, it's good to go with now because we are already, yes, 8 minutes ahead with the time. Okay, because everyone is saying yes, awareness is important and we have to know about it. The thing is, first of all, I am just presenting myself with the PPT, means my own title over there. So then we will go ahead with it. Okay, let me share my screen. Yes, sir, it's visible. Okay, fine. So I have already been in engineering college in Slide University from Punjab. I did my graduation, that is electronics and communication branch, and from the very beginning of my college life, right, I was very eager to go with the kind of stuff, right. So in my diploma as well, I did some robotics stuff, and in my engineering as very attachment with the robotics, right. But the thing is, suddenly the from the very beginning, I was quite much devoted to teaching, right. So I was about my teaching. Then I continue forward with this teaching even in my college life, uh, teaching the students as well. So then after the college life, I was just as well, because right now I am just dealing about myself. So थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में जान लो, फिर we can continue ahead. Is it okay, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir, it's okay. 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 So starting me from the very beginning, is about I was after the completing of my graduation, I get finances and all. On the very first day, I didn't get kicked because it was not my kind of job. MNC company is like, yes, you are getting everything. After some years, you will get a good salary. But the thing is, I was not pretty much happy with that because my passion was two things, right? First one is the robotics, and the second was teaching, right? So that's why I just kicked my job on the very first day, and then I started to pursue ahead with some kind of job which will be in the technical domain in kind of robotics. So for 1 year in Delhi, I was there as an academic tutor, means robotics tutor over there. So after that, I get some colleges as well in which I will go and just teach the robotics kind of stuff. So from there, I get continue with the ATL trainer as well. ATL, I hope many of you are not aware, and many of you are aware also. So ATL full form is Atal Tinkering Lab. So Atal Tinkering Lab is a kind of initiative by the MHRD itself. Now it's become the Ministry of Education, जिसके बारे में अभी now I'm going to talk with you. So then I will continue for the last means March 2020. Then up to means February 2020. After that, the lockdown is there. So after that, I came to my means native place because I am from Bihar itself, and here I am just continuing myself with some kind of, you can say,
academic educations and means academic schools and all. I am right now a physics teacher in the school over here. Now, coming ahead to start with this NEP, I'm going to present you now. So, why NEP, right? So, National Education Policy. This was already means it's make a transformation in the kind of life that we are pursuing right now, and it will let we enjoy kind of another country's growth of development in the education field. The same thing will be copied to us in India with the help of this national education policy, right? So one by one, we will just go ahead with these kind of key features and all, and I hope you will like it. So I'm going to ahead with this presentation. Okay. So can you see the screen now? Is it changing now? Anjali, let me know. Yes, sir. Yes, sir. It's Okay, fine. changing. Okay, fine. So, very first, you can see here, yes. So, India's first NEP, yes. So, National Education Policy was firstly launched in 1968, right? Indira Gandhi government was there. So, there was no much of kind of transformations, right? After that, Rajiv Gandhi government came 86. There will be second NEP. Then some of the national education, Narasimha Rao government was there. This kind of history was there, but I'm not going to deal with everything, right? The thing which was totally changed our means you can say scenario in the education field was about when BJP government came and in committee headed by TSR Subramaniam, you know, by HRD minister in 2015, and after that 9 members committee was there who drafted 2019. That was a very great means you can say drastic change was coming after this situation, and that was about the national education policy, right? So now we are going to deal with the main agenda of NEP, right? So why NEP was there? Okay, so it's all because the main agenda behind it was to get a sustainable development in our country, because the development was not at a quite good growth, good rate. So that's why the government think that why not a kind of a proper agenda should be there, that should be means transform the education, and then we have some kind of means you can say means we can tally with the another country's development in education field, right? So that's why we adopted this main agenda, and from this year 2021, the government has approx implemented some of the aspects, but right now it's already in processing, right? Some of the means instructions has already been implemented, and some are carrying forward, right? Can you let me know that it's already changing or not, Anjali? Means am main agenda of NEP, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay, okay, fine, fine. So because I'm not getting some response, so that's why I'm confirming that. Okay, fine. So first, I also want to know, because मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हिंदी में भी comfortable होंगे. So how many of you are from south side? South? Yes, please let me know. I don't think so. Yes. Okay, everyone is okay with Hindi or English? Yes, please let me know. Sir, I think we Yes, yes. all are comfortable in English. Like you can use both Okay. languages. So that's why. Okay, English. Okay, thanks. Thanks, Sajan. Okay, I am going forward. Okay. So here I am that I've already explained about the agenda of this sustainable development in our country. So then the India was transforming, right? From the very I think according to me that when PM Modi has came, and then it's totally just changed, transformed in a very vibrant way, right? And here also the vibrant knowledge society, for the vibrant knowledge society and the global knowledge superpower, it it was the aim of our government to transform the India with the help of just changing the education policy, right? So it was kind of bringing out the unique capability of each student, because with the help of this national education policy now, the policies is going to help the students in the very great way that even from their very beginning of their means foundation education,
they will get so much of means open-minded environment that they can do anything, means whatever we are thinking, right? Suppose I get to know that you are the engineers, right? So engineering and stuff are coming in kind of after completing our diploma, after 12th and all. But right now the thing which is already going inside some of the countries was is something like that. They are just the students in the very early age over in the another countries, they are getting knowledge of some engineering stuff. You can see, I have you many of you have heard about STEM learning. Have you heard of STEM? STEM? Please let me know. STEM. Yes, sir. It's related to engineering means engineering, science, technology, engineering, and maths, I think. Yes, yes. So STEM program, STEM. So STEM program is already in there in India also, but it's an foreign, you can say, program. So in science, technology, engineering, mathematics, I'm giving you a little overview of that. जिसको थोड़ा बहुत नहीं पता है STEM के बारे में, I'm just briefing about that. तो STEM में क्या होता है कि the thing, suppose in the age of means lower grade classes, six classes and all, there is a chapter like wind energy is there, right? So wind energy is there, some kind of sound chapter is there, or conversion of one energy to another energy. So for this, what kind, how the STEM learning is helping the students. तो हम जो पढ़ते थे क्या पढ़ते थे कि यार हमने क्या किया, थोड़े बहुत मतलब साइंस का बिल्कुल जो थ्योरेटिकल पार्ट होता था वो हम जानते थे कि हाँ विंड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की डेफिनेशन याद कर ली, साउंड एनर्जी ये है, विंड एनर्जी ये बस पढ़ लिया, दैट्स इट. बट द थिंग इज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम लर्निंग हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दिस फोर सेगमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. जैसे कि विंड एनर्जी की अगर बात की तो साइंस उसमें क्या लगा, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी थी, उसके पीछे क्या इंजीनियरिंग लगा, और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस क्या होंगे उसके रिगार्डिंग, जैसे मैं विंड एनर्जी की बात कर रहा हूँ. सो एवरीथिंग इज देयर एंड वी विल मेक सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स with the help of some kit, and then it will be very clear to the student in the very early age, हाँ ये पवन चक्की जो है ऐसे चलती है, this windmill is running like this, what is the logic behind it. अब वो बच्चे सोचेंगे कि आखिर इतने छोटे एज में हमें इतनी सारी चीजें मिल रही है, so how they are not going to benefit us in the very means future. Are you getting it, everyone? Yes. Yes, sir. हेलो. ओह थैंक्स. पहला यस मिलने पे मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसे ही जस्ट कंटिन्यू विद मी. ओके थैंक्स. सो आई होप स्टेम लर्निंग इज क्लियर, राइट? तो मैंने स्टेम लर्निंग का इसलिए ओवरव्यू दिया बिकॉज द थिंग इज मुझे ऐसा लगता है इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी, इस टाइप की जो लर्निंग है, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस बाय गोइंग विद दिस एनईपी. इसने हमें बहुत कुछ चेंज करने वाला है जो मैं देख पा रहा हूँ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देन गोइंग अहेड विद इट, the next paragraph means the next slide is about the three significant changes that I think personally that is brought by this policies. The first one is, I hope many of you already heard about this thing, that HRD minister is already renamed as the Ministry of Education, that I've already talked about, right? So second thing is the GDP. Our GDP contribution was quite low till yet. Okay, they always try to say, means many of the previous policies as well, that the government has decided, yes we will just invest 6%, but it was not like that. They did what means many less amount of percentage are contributed to this you can say NEP, but in this time they are promising very well that yes they are going to invest 6% of GDP for the growth of education in infrastructure and all. And yes, let's see that what will happen. We are very firm with the government means procedure and all. And the third thing that is the significant changes about is gross enrollment ratio. What does it mean? Enrollment means kind of, you can say, the how much students are going to enroll here, right? Means you can say that in China and all, the the gross enrollment rate is quite high, kind of 70%. What gross enrollment ratio is, I hope many of you know or not. Please let me know that, do you know that what is GER? Please tell me. Agar nahi to at least I need a no, or I can carry forward. Okay, Anurag Tiwari, no sir. Anyone else? Okay, thank you for responding very soon. Okay,
लेट मी टेल यू वन थिंग। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनरोलमेंट मीन्स व्हाट, कि बच्चों का दाखिला, राइट? आपको पता है बहुत मतलब रेशियो बिल्कुल कम था। यू कैन से इट्स अबाउट 30 पॉइंट कुछ था, ऐसा कुछ था। तो यू कैन सी ना कि कितना कम ग्रोथ था, कितना कम इनरोलमेंट था। सो आई होप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज क्लियर अबाउट इट एवरीवन। यस, कुशाल, अंजलि, सूरज, ओके, आई एम गेटिंग सम यस, ओके, थैंक्स। ओके, सो ये जो तीन मतलब यूं कहो तो मुद्दे थे, इसको मैंने सोचा कि यही मुद्दे जो हैं, यही टॉपिक्स जो हैं, जो सिग्निफिकेंट चेंज लगे मुझे एनईपी के, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। अब आगे चलते हैं एंड जस्ट सी दैट व्हाट आई हैव इन माय नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब भाई सबसे मेन मुद्दा जो है, चेंज इन एकेडमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, द थिंग इज कैसे चेंज हो रहा है। मेनी ऑफ यू, मुझे पता है कि भले ही कोई कहे या ना कहे कि मुझे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ पता है, कोई बताएगा इतना पता है, कोई कहेगा मेरे को थोड़ा बहुत पता है, बट द थिंग इज, मैं बताना ये चाहूंगा, ये चीज लगभग सबको क्लियर हो चुकी है, और जिसको नहीं पता है वो आज जान जाओ, ढंग से जान जाओ। मैं सही बताऊं, अभी मैं फिर से एक और थोड़ा सा इसको अपने स्लाइड को ब्रेक देके अपने बारे में बता रहा हूँ। प्लीज पॉइंट टू मी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मेन मोटो क्या था, मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। I have already experience in robotics as well. I can deliver about the robotics stuff, how to deal with it, and even I will just let you know that what are the experiences that I have in my previous life regarding the robotics. मैं ये सारी चीजें बता सकता था, लेकिन anything क्यों? Because first thing, बहुत लोगों को ना आधी अधूरी नॉलेज है, and you know little knowledge is very dangerous. तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को आगे ले आए, राइट? और एक और चीज, in every of you means what whoever so joined here, आपके घर में कोई ना कोई बच्चा तो होगा ही, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, आपके रिलेटिव में होंगे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना, वी आर इंजीनियर्स, सो हाउ वी कैन जस्ट मीन्स सीड दिस नॉलेज टू एवरीवन। जैसे था ना एक मूवी में कि आप दो को बताओ, वो दो तीन को बताएगा, ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ना। मैं सही बताऊं तो मेरा थोड़ा मोटो, आई एम काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर आल्सो। मैं आपको बता दूं कि मैं और सचिन, वी आर ऑल देयर इन द डेल कैंपेसिटर, हम साथ में ही थे सब। तो मतलब हमारा माइंडसेट बिल्कुल लगभग सेम ही है, राइट? सोशियो काइंड ऑफ। सो ये मेरा माइंडसेट था कि मैं पहला अपना जो वेबिनार करूं या जो आपके साथ सेशन करूं, इट वाज ऑल अबाउट काइंड ऑफ सम वेलफेयर। हाँ, अगर मेरे फीडबैक अच्छे रहे तो डेफिनेटली आई विल गो विद माय रोबोटिक्स एंड ऑल, मैं उसकी भी कोशिश आपके साथ सेशन करूंगा। बट राइट नाउ ये मेरा मेन मोटो था कि हाँ, ये नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ आज, तो जो आपको नहीं पता हो तो वो आप थोड़े दूर तक ले जाओ, अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो अब आते हैं अब मेन टॉपिक पे। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द ड्रास्टिक चेंजेस इन दिस एकेडमिक स्ट्रक्चर, जो कि सही बताऊं तो सबसे सही मायने में इसने बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया है, और लोगों के लिए ऐसे ऐसे द्वार खोल दिए हैं कि आप मतलब हर एक सपने को एंजॉय कर सकते हो। एंड डेफिनेटली द यू कैन से जो वर्डिंग्स थे आपके 3 इडियट्स मूवी में, है ना, कि जो तेरा मन करे वही कर, वो वाला सीन हो चुका है अब, है ना। द करंट स्ट्रक्चर इज समथिंग एल्स। क्या चल रहा है? बस 3 ही स्ट्रीम चल रही है, बट आप खुद सोचो कितना रोना होता था। मतलब मैं बताऊं तो सीरियसली आई एम आल्सो नॉट परस्यूड माय 12th। मैंने तो 12th की नहीं, बिकॉज आई एम फ्रॉम द डिप्लोमा एज वेल। आई होप मेनी ऑफ यू नो कि जो अगर जो डिप्लोमा करता है तो डेफिनेटली उसका 12th रह ही गया है। मतलब बहुत लोग 12th के बाद भी डिप्लोमा करते हैं, आई नो, बट यस आई डिडंट गो विद द 12th। तो मुझे तो पता नहीं है कि कैसे कितनी मारा मारी थी, बट यस मुझे जो सुनने में आता है, लोग क्या कहते हैं कि यार मेरी तमन्ना कुछ और थी, मुझे मन था आई वांट टू गो विद, मुझे जो बायो अच्छी लगती थी, है ना, फिर मुझे एक और सब्जेक्ट हिस्ट्री भी अच्छा लगता था, क्यों ना मैंने वो ले लेता तो मेरा करियर सुधर जाता। इट्स काइंड ऑफ दैट गिल्ट अभी भी लोगों के जेहन में है, जो कुछ बन चुके हैं इवन, उनके मन में भी आता है यार मेरे साथ अगर ये होता ना, मैं इसको परस्यू कर सकता था, ये वाली जॉब मेरी फिट बैठती। बस एक क्या आती थी, मैथ्स नहीं आती थी, इसलिए साइंस नहीं ले पाया,
एक फिजिक्स नहीं आती थी इसलिए साइंस नहीं ले पाया, और बार में यही दिमाग में चलते रहते थे यार ये तो साइंस वाला बंदा है, इसके पास तो इससे तो चिपक के नहीं रहना, मैं आर्ट्स वालों में कहाँ ये कहाँ मैं कहाँ, राइट, काइंड ऑफ दैट। तो ये चीज को दूर करने के लिए यू कैन से ऐसा लगता था ना पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ। सो इस चीज को दूर करने के लिए एकेडमिक स्ट्रक्चर में पूरा बदलाव किया गया। एंड नाउ करंट स्ट्रक्चर आपको पता ही है, मैं एक बार फिर से आपको डील कर देता हूँ। वैसे 10+2 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और बच्चों का ऐसा कुछ होता है कि वो 6 से 16 साल तक, राइट, ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है कि वो 10 तक एक ही स्कूल में रगड़ते रहते हैं, है ना। जैसे कि मैं भी बता दूं, मेरे साथ भी ऐसे था। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्कूल, आई स्टडी फॉर 10 years इन द सेम स्कूल, एंड देन आफ्टर यस डिप्लोमा एंड देन इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आप 10 साल के लिए एक ही स्कूल में पढ़े रहो, फिर जब 12th में आते हो, 12th में जब 12th की बारी आती है, यानी 11th की जब बारी आती है, तो आप क्या करते हो, 3 year stream। बट नाउ इट इज टोटली चेंज, इट्स नॉट 10+2 नाउ इट्स 5+3+3 5+3+3+4 5-3-3-4, राइट। अब ये 5-3-3-4 है क्या, बहुतों को पता होगा, फिर से मैं बताता हूँ। मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट बिकॉज ये काफी एक साल पुराना टॉपिक हो चुका है, आई नो। लेकिन कुछ ऐसे पहलू मैं आज इसमें निकाल के लाने वाला हूँ कि हाँ आपको लगेगा थोड़ा अलग है, तो सो हैव सम पेशेंस, वी विल गो फॉरवर्ड वन बाय वन, ठीक है। तो ऐसा हुआ, वेट सेकंड, ओके, द थिंग इज, ये तो ठीक है कि ये जो प्रोपोज स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने रखा है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो कुछ ऐसा है कि भाई ऐसा है, आप बच्चों को मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में लोगों को पता है ना कि उसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं होता है, हाँ या ना, कितनों को पता है प्लीज? यस सर। यस यस यस, ओके ओके। सेकेंडली जल्दी से बताना कि अगर वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं होता है तो होता क्या है, बच्चे उस 3 साल में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी पढ़ाई करते हैं या नहीं करते, कहीं जाते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ है कि नहीं? यस यस, मराठी में उसे आंगनवाड़ी कहते हैं। डेफिनेटली, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग माय वर्ड। यस यस सूरज, अब एक बात बताऊं, ये आंगनवाड़ी गया नहीं, क्योंकि जॉब है उनकी यार, वो कहाँ जाएंगी, दे आर गोइंग टू मर्ज विद द गवर्नमेंट, कुछ रूल्स पॉलिसी आएंगी, और बताऊं वो क्या होने वाला है, वो हमारे पहले स्लैब में आने वाला है। इट इज गोइंग इनटू द फर्स्ट वन, दैट इज द 5th 5-year प्लान, जो अभी आपने देखा 5-3-3-4 का स्ट्रक्चर है ना, 5 वाला फर्स्ट स्लैब जो है, इसमें उन्हें इंडल्ज कर लिया जाएगा, और उन्हें क्या किया जाएगा कि भाई आपको जो भी मतलब पैसे पहले फंड मिलते थे, वो फंड अब इधर ही आएगा, और उनको शुरू से मतलब जैसे होता है ना आजकल प्ले स्कूल वगैरह में बच्चे को इतना पैसे दे के हम रखते हैं, सो व्हाई नॉट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ? If the government is going to implement, definitely it will be happen even in the village side as well, right? So that's why government think of this procedure, and it implemented in its first year slab, that is the first 5-year slab. तो हमारा क्या हो गया, अभी चलते हैं, चलो ये मैं इससे और इलस्ट्रेटेड वे में समझाता हूँ। लेट मी जस्ट चेंज द स्लाइड। देखो, आई होप ये अब अच्छे से समझ आएगा आपको। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो, सबसे पहला जो है ना 3 year, कैन यू सी माई कर्सर, मेरा कर्सर घूमते हुए दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir, yes, sir. Definitely. थैंक्स। नाउ तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज है, राइट, तो इसमें क्या कर दिया इन लोगों ने कि हमारे 3 साल, यानी कि जो हम आंगनबाड़ी में बच्चे रहते थे, है ना, प्री स्कूल कह लो या फिर कहीं कहीं बाल वाटिका भी कहते हैं, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे उधर ही रहते थे, राइट। हमारे अंदर भी इधर हमारे घर का बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब जाएगा नर्सरी में, ऐसा हम सोचते थे, है ना, कि यार 6 साल तो हो जाने जैसे। अब क्या है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है प्राइवेट में, यार 6 साल तक कौन वेट करेगा, प्ले में भेजते हैं इसको। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये जो माइंडसेट था गवर्नमेंट ने ले आया, भाई चलो सबके लिए कर देते हैं, तो ऐसा इसने सबके लिए कर दिया। फाउंडेशनल स्टेज में क्या है कि बच्चे जो हैं फ्रॉम द 3 to यू कैन से 8, जैसे कि क्या हो गया, क्योंकि 5 साल का गैप हो गया, 3 to 8 एज में क्या होगा, हम 5 साल का गैप लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो होता है उसको हमने 3 साल मान लिया, है ना, जो आंगनवाड़ी वाला था, और प्लस 2 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास।
यानी कि नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक हमने एक स्लैब बनाया जिसको हमने बोला फाउंडेशनल, राइट? सो फाउंडेशनल स्टेज विल बी काइंड ऑफ मल्टी लेवल एंड इट्स काइंड ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्लियर? मूविंग अहेड द सेकंड स्टेज, मींस मैं नीचे से चल रहा हूँ, आप फर्स्ट सेकंड जिधर से भी करना चाहो कर लो। तो जो सेकंड स्टेज है इट्स समथिंग लाइक प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, 3 साल, यानी बच्चे जो हैं 3 से 5 क्लास तक दे विल बी देयर, दैट आर द एज इज फ्रॉम द 8 to 11, ठीक है? तो इसमें बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो सही बताऊं तो इसमें जो बच्चे हैं, मैंने कुछ और भी पॉइंट्स लिखे थे, वो मैं आपको साथ और शेयर करूंगा। जैसे कि वो क्या करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसके मतलब अपने जो कोर सब्जेक्ट है उससे थोड़ा हटकर भी वो चीज़ें जानना सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अभी आगे बात करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू डील विद दैट, कि हाँ देयर विल बी अ रिडक्शन इन कोर्स एज वेल एंड इट इज प्रीटी मच फोकस्ड ऑन, यू कैन से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यू कैन से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ताकि अभी से बच्चों को इंजीनियर बनाया जाए, है ना? तो ये एक तो मोटो स्टेम लर्निंग का भी था कि हाँ बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेम प्रोग्राम। एंड हियर ये सेकंड स्टेज था। प्रिपरेटरी स्टेज में हमारे क्या है, बच्चे थोड़े बहुत खेलेंगे, कुछ डिस्कवर करेंगे, कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, इंटरेक्शन क्लास जो होगी वो थोड़ा इंटरेक्टिंग होगी, है ना? इंटरेक्टिव वे में सब चीज़ें करेंगे। देन आफ्टर दैट देयर इज अनदर स्लैब, दैट इज द थर्ड स्लैब 5-3-3, है ना? तो उसमें क्या होगा, 6वीं से 8वीं तक के बच्चे, यस, एंड द एज इज समथिंग लाइक फ्रॉम 11 to 14, है ना? एंड इन दिस यहाँ पे थोड़ा ड्रास्टिक चेंज भी आएगा बच्चों में, जैसे कि ये एक तरीके से आप कह लो कि मिडिल स्टेज रहेगा, राइट? एंड दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू चूज देयर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे यार। हमारे टाइम तो भाई क्या था, तो पहले चुपचाप करके 12th कंप्लीट कर, है ना? उसके बाद ही कुछ बोलना, ऐसा घर में हमेशा होते रहता था कि यार 10th तो कंप्लीट कर लो पहले, फिर इसके बारे में सोचना है कि क्या करना है। मेरे को म्यूजिक अच्छी लगती है, बेटा पढ़ लो पहले। लेकिन अब सारा नजरिया चेंज होने वाला है। नाउ नो पेरेंट्स इज गोइंग टू जस्ट से स्टूडेंट्स देयर किड्स कि बेटा चुपचाप पढ़ो, नहीं। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स एज वेल कि भाई जी लो अपनी जिंदगी, और जिस फील्ड में जाना है उधर जाओ और अपना कुछ करके दिखाओ, करियर बनाओ, राइट? सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और डेफिनेटली सबको अच्छी लग रही है, ठीक है? और फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो लास्ट स्टेज है, जो कि सबसे मतलब ये कहते तो की पॉइंट है, ये सेकेंडरी स्टेज जो आता है 9वीं से लेकर 12वीं तक। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, क्लास 6 के बाद से ही वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। आई होप मेनी ऑफ यू नो टू दिस वोकेशनल कोर्सेज। कुछ पता है वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, पता है या नहीं? यस, यू नो वोकेशनल कोर्सेज, प्लीज कम अहेड। Yes, no, कुछ तो बोलो। Okay. Vocational courses are something like the language of another country's type, or क्या linguistic or not? Okay. Yes, it will be. It is also. हाँ, ये भी होता है vocational courses, लेकिन like training, programming language, yes, बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सब चीजें चाहिए। तो कहने का मतलब है ना, vocational courses कौन से आ जा रहे हैं? vocational courses यूँ कहो, मैं सही बताता हूँ, ये चीज देखना बहुत अच्छा लगेगा सुन के। अब ऐसा है, अगर किसी बच्चे के मन में एक इच्छा है, छोटे से बच्चा है, 6th क्लास में है, उसके मन में इच्छा है, मतलब 5th में था, अब उसके साथ है कि यार मुझे ना मन करता है कि ये बगल में जो पॉटरी वाला बंदा है ना, मतलब कुम्हार जो है, जो घड़ा बनाता है, जो दिया बनाता है, आई वॉन्ट टू गो विथ हिम, आई वॉन्ट टू मेक दिस एंड आई वॉन्ट टू, इफ आई लाइक, मुझे अगर बनाना आ गया तो डेफिनेटली द स्टूडेंट, द किड वॉन्ट टू परस्यू दैट। तो मतलब ऐसा मत सोचो कि छोटी चीज है, कोई भी चीज छोटी नहीं है ना, मतलब कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, काइंड ऑफ आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों के अंदर की जो ललक थी वो वहीं मर जाती थी, बट नाउ वी कंसीडर दिस दैट टू गोइंग टू अ लोकल वेंडर एंड लर्न समथिंग लाइक ट्रेनिंग। अनुराग तिवारी हैज सेड यस, ट्रेनिंग, यस सर, लाइक फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। हाँ, ये मैं कहता रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं इसमें। सो वोकेशनल कोर्सेज आर समथिंग लाइक व्हाट that helps to upgrade your skills and it totally related with your interest as well. So मैंने जैसे बोला ना, कुछ बच्चों का ऐसा था कि यार मुझे पॉटरी सीखनी है,
ठीक है। 6 क्लास के बाद ऐसा कुछ होगा, ये मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे मिला ये सब चीज़ें, कि 6 क्लास के बाद ऐसा कुछ होगा कि बच्चों को 10 दिन का बैगलेस वोकेशनल कोर्स का मौका मिलेगा। दे विल गो टू द लोकल वेंडर्स, पॉटरी सीखना पॉटरी वाले के पास जाओ, किसी को टेलरिंग सीखना वो टेलरिंग वाले के पास जाएगा, डांस सीखना ये तो डांस म्यूजिक भी हो गया है। मतलब इस तरीके की जो भी आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, यस स्टूडेंट कैन डू। तो उस 10 दिन के बैगलेस ट्रेनिंग में बच्चा जाएगा इन लोगों के पास, वो सीख के आएगा, और अगर वो बंदा मतलब बच्चा जो है अच्छा कर जाता है तो डेफिनेटली वो उसको परस्यू कर सकता है, उसके क्रेडिट्स ऐड होंगे, एंड दैट क्रेडिट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू लेट हिज लाइफ एंजॉय इन फर्दर इन फ्यूचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? द वोकेशनल कोर्स इज क्लियर टू यू और नॉट? आई होप इट शुड बी। यस, अभी वोकेशनल कोर्स क्लियर हो चुका है थोड़ा बहुत, कि और भी बताने की जरूरत है? ओके फाइन, थैंक्स लॉट कुशाल शुभम। यस यस ओके, तो मैं बता रहा हूँ 6 क्लास के बाद वोकेशनल कोर्सेज चालू हो जाएंगे। कोडिंग क्लासेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ने कहा था सूरज ने, यस, तो कोडिंग क्लासेस भी बच्चे 6 के बाद अडॉप्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ एज वेल कि बच्चों को कोडिंग मस्ट भी हो जाने वाला है 6 के बाद से, बच्चों को मतलब मैंडेटरी भी ना हो जाए ऐसा भी आने वाला है। एंड यस, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो एक करियर इधर भी बनता है, राइट? सो ये भी माइंडसेट रखना। और सही बात, तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि यस, जो मैंने सोचा था वो होने जा रहा है, राइट? कि मैं इसी फील्ड में आना चाहता था, ट्रेनिंग में आना चाहता था, ट्रेनर बनना चाहता था, एंड इवन आई वांट टू टीच द कोडिंग एज वेल। I have my dream right now. I am sharing with you as well. My dream is like I want to upgrade my little society, means my district, with the help of this technological knowledge, right? तो वो मैंने करना चाहता था, मेरा खुद का मन था कि मैं अपना स्टार्टअप करूँ, आई विल जस्ट मेक अ काइंड ऑफ कोडिंग क्लब हियर और अपग्रेड करूँ। और अभी देखो पॉलिसी ही ऐसी बन गई कि यस, आई विल बी मोस्ट वांटेड, काइंड ऑफ मोस्ट वांटेड बन जाओगे आप अगर आप कोडिंग क्लासेस में हो तो। एक टीचिंग का भी सेक्शन। और एक बात और बता दूं कि हाँ, आप लोग सोच रहे हो सर ने क्या ही बोल दिया टीचिंग के रिगार्डिंग, बिकॉज सबके बस की बात नहीं होती टीचिंग, राइट? सो इट्स ऑल्सो दैट टीचिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन यस, एक करियर किधर भी बनता है, राइट? चलो ज्यादा हो रहा है, अब मैं क्योंकि आगे बढ़ना भी है, बहुत ज्यादा स्लाइड्स है। 8 हमारा जो स्लाइड है, सो व्हाट्स गोइंग टू चेंज इन द स्कूल एजुकेशन। सो हियर आर 3 थिंग्स, इसको मैं एक एक करके फटाफट बताता हूँ। कि देखो स्कूल एजुकेशन में तो और भी चीजें मैंने बताई दी थी कि स्ट्रक्चर, एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया, नाउ और क्या चेंज होने वाला है। देखो पहला ही टॉपिक इसने लिख दिया है कि स्टूडेंट टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। अब बताओ, पेड इंटर्नशिप भी मिल जाएंगी छोटे छोटे बच्चों को, तो कितना मजा आएगा। अगर उसको एंजॉय करके जीने लगे तो भाई मजे ही है ना, राइट? सो सेकंड थिंग इज मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5। ठीक है, बच्चे जो हैं छोटे हैं, और मैं बताऊं तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप नेट पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे तो सबसे ज्यादा यही मतलब बर्निंग टॉपिक है कि क्यों इन लोगों ने मदर टंग कर दिया कि कुछ भी करा सकते हैं क्लास 5 तक, ये वो। मतलब मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि इस पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट आई वॉन्ट टू से यस। और एक और चीज़, सबसे पहले कि जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये अभी प्रोसेस में है। थोड़े दिनों बाद आप लोगों को लगेगा कि सर ने जो बताया था ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन अब अभी बता दूँ, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस कि यस, ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी है और कुछ कुछ चीज़ें होने बाकी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होने बाकी है। तो हो सकता है ये चेंजेस आपको रियल में ना दिखे, लेकिन हाँ, ये होने वाला है। और ये चीज़ें होने लगी हैं तभी मैं इतना रियलाइज करके मैं अभी पीपीटी जो भी सामने शो कर पा रहा हूँ, राइट? Okay, so the second thing is mother tongue to be medium of instruction till class. Student can learn in even in our means basic home language as well. And you can कहते हैं मातृक भाषा जो होती है, गांव की भाषा, उसमें भी मातृभूमि वाली भाषा जो होती है, जैसे कोई मगही, मैथ, यू कैन से बंगाली, जिस लैंग्वेज में सीखना चाहता है वो सीख सकता है। इवन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बिहार से हूँ तो हाँ, भोजपुरी भी शुरू हो जाएगी कहीं, राइट? तो ये सारी चीज इसमें आ चुकी है। थर्ड थिंग इज व्हाट 360 डिग्री इवैल्यूएशन फॉर रिपोर्ट कार्ड। कोई इस पे कुछ कमेंट करेगा क्या प्लीज? मुझे इंट्रोडक्शन बना के रखना पसंद है। सो इसके बारे में कितनों को पता है कि 360 डिग्री रिपोर्ट्स कार्ड? थोड़ा बहुत पता है, जल्दी बता दे प्लीज, क्योंकि
स्लाइड्स अभी भी बहुत ज्यादा है. Yes. थर्ड टॉपिक 360 डिग्री इवैल्यूएशन फॉर रिपोर्ट कार्ड्स. कैन यू देट आइडिया? थोड़ा भी बता दो. आई मुझे लगता है दो स्टार्टिंग के दो आपको पता थे, थर्ड नहीं पता होगा थोड़ा बहुत भी. सर कि हमारे मतलब पूरा की एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक भी. ओके, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ. थैंक्स अंजलि फॉर हेल्पिंग मी आउट. आंसर्स आ रहे हैं. मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लाओ एटलीस्ट कुछ वर्ड्स. ओके, देखो मुझे जब पता लग रहा है क्योंकि आप नहीं बोल पा रहे हो तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यस यू डोंट नो अबाउट दिस. इसमें क्या होने वाला है? इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, इस 360 डिग्री इवैल्यूएशन फॉर रिपोर्ट कार्ड्स में वाला है कि बच्चों को एक मौका मिलेगा वो 3 लेवल पे जाके अब बनाए. द फर्स्ट थिंग, स्टूडेंट विल रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अपनी रेटिंग खुद से देंगे कि मेरी क्या औकात है, काइंड ऑफ. हाँ, मैं कितने लेवल तक जा सकता हूँ, मेरी मतलब एग्जाम में अच्छा सा मतलब एग्जाम दिया कि नहीं दिया, मेरे हिसाब से कितने लेवल तक कर दिया. ठीक है, अपनी रेटिंग कर. टीचर्स तो भाई हर बार करते हैं, राइट. टीचर इज गोइंग टू रिपोर्ट मेक द रिपोर्ट कार्ड. उन्हीं के हाथ में चल रहा सिनेरियो. चलो उसे सेकंड मान लिया. थर्ड क्या है आपको बताऊं, बहुत कंपटीशन वाली भावना पैदा करेगा. द थर्ड थिंग इज इवन योर फ्रेंड्स, यानी कि आपके जो दोस्त होंगे, आपके कलीग्स होंगे, दे विल आल्सो रेट यू. बताओ, इससे ऑब्वियसली 360 डिग्री रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, इवैल्यूएशन हो रहा है रिपोर्ट कार्ड का. तो इससे क्या होगा कि पार्शियलिटी नहीं होगी, जो जेन्युइन रिजल्ट होगा वो निकल कर बाहर आएगा. द एवरेज थिंग इज देयर. Everything understood about 360 degree evolution? I hope. Is there any doubt? You can go ahead. No, sir, it's all clear. Oh, thanks a lot. Thanks, Subhan. Okay, so these things are going to be changed in school education. और मैं बताऊं कि मैं अभी जितना भी आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, oh thanks सूरज. So जितना भी मैं भी प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, इससे much बेटर चीजें और भी हैं, लेकिन वी कांट कवर इन 1 आवर सेशन, राइट. तो कोई बात नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है वो तो आपको बता दो, कहीं इसका पार्ट 2 भी हो सकता है. इट्स ओके. तो यही चीज एनालाइज करने में ही मुझे बहुत टाइम लगा, बट देर आए दुरुस्त है. देखते हैं आगे क्या है. चलो, सो मूविंग अहेड, 9th स्लाइड इज देयर. देखो अब बात आती है, मैं ज्यादा बातें करूंगा. अभी तक हम थे हाई स्कूल के नीचे तक, राइट, स्कूल एजुकेशन तक थे. अब हम थोड़ा बढ़ते हैं. Now we will go with the higher education. उसके बाद से चलेंगे तो हम आएंगे ग्रेजुएशन वाले में, फिर थोड़ा और टेक्निकल वाले में. कि मैं बताऊं, ये सारी स्लैब्स मैंने ऐसे बनाए हैं कि यस, कि मैं फालतू की चीजें नहीं बताने वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, क्योंकि बहुत सारी चीजें. बट आई विल गिव यू दोज काइंड ऑफ स्टफ्स व्हिच आर वेरी नेसेसरी फॉर योर मींस यू कैन से जनरल नॉलेज, राइट. तो चलो, चेंजेस इन हायर एजुकेशन क्या हो गया. यू कैन सी फर्स्ट स्लैब में मैंने लिखा है सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल. अच्छा भाई, ये देखो क्या हो रहा है. ये क्या कह रहा है कि अब पहले क्या होता था, AICT, फिर आपका NAAC एक्रेडिटेशन वगैरह होता है. मतलब रेगुलेटरी बॉडीज जो थी ना अभी तक, बहुत सारी थी. ठीक है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं या फिर कुछ और आपको अपने एजुकेशनल वर्क कराने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता था, भागा दौड़ी. डेफिनेटली आपको यहाँ पे जाना है, AICT से आने में लेट है, हमारे इस बोर्ड से आने में लेट है, ये आएगा तब इसका रिजल्ट बनेगा, ऐसा था. बट सिंगल रेगुलेटरी, ये क्या होने वाला है, एक हाथ में पकड़ आने वाली है. एंड नाउ वो क्या करेगा, हमारे सारे ऑपरेशन को डील करेगा. और हमें अगर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है, या फिर मैं अभी इसी सेक्टर में बात कर रहा हूँ, सिंगल रेगुलेटरी, ये तो आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, राइट. सो इट विल हेल्प अस टू मीन्स इवन विथड्रॉ आवर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल. और कोई भी अगर काम है ऊपर की अथॉरिटी से लेना है हमें, इट विल सो इजी फॉर अस. वो हमको इजी गोइंग वे में मिल जाएगा, राइट. तो ये बहुत मतलब अच्छी भी चीज़ है. और मैं बताऊं, अभी मैंने एक बात करी थी, जो फर्स्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक फॉर द NEP इज द लैंग्वेज वाला. सेकेंड थिंग ये है कि यार क्यों सारी बागडोर एक हाथ में दे रहे हो. इस पे भी बहुत बहसा वैसी चल रही है अभी. यू कैन सी इट्स आल्सो ट्रेंडिंग. ठीक है, तो ये तो हो गया. नाउ मूविंग टू सेकंड वन, मेरू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन HECI टू बी सेटअप.
देखो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक अथॉरिटी बनेगी, वो सारा कुछ जो भी हायर एजुकेशन का रहेगा वो सारा डील करेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काइंड ऑफ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे जो बच्चों को शुरू से ही 6th क्लास से ही दे विल हेल्प देम टू ग्रो विद द रिसर्च माइंडसेट। वो शुरू से ही रिसर्च के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इफ दे हैव सम ईगर नॉलेज टू नो अबाउट समथिंग, दे विल हेल्प, मींस दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प देम। तो सोच रहे हो कितनी बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने सोच रखी है। थर्ड थिंग पे चलते हैं जल्दी से कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट विद नो डिवीजन इनटू 3 स्ट्रीम। हाँ भाई, ये तो मैंने पहले बता रखा है राइट, कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ 3 स्ट्रीम्स। अब तो भाई आप अपनी खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बना के खुद ही खा लो काइंड ऑफ लाइक कि आपको अच्छा लगता है यार मुझे फिजिक्स चाहिए, मुझे हिस्ट्री चाहिए, मुझे कॉमर्स भी चाहिए, लो भाई सब मिलाया आगे बढ़ गए, इसको लेकर आपकी 12th हो रही है इसमें, राइट। सो देयर इज नो एनी बाउंडेशन फॉर द 3 स्ट्रीम्स ओनली, एनीवन कैन अडॉप्ट एनीवन, राइट। फिर आता है रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर्स। ये भी मैंने बताया था कि यस कॉन्सेप्ट जो भी कोर कॉन्सेप्ट है उसी में आपको रहना है। फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और हाँ, आपको पता है अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। स्टूडेंट्स को यानी कि हमें कहाँ, हम तो कितने इवन मेनी ऑफ अस ऑल्सो फील जेलस, यार हमारे टाइम पे क्यों नहीं हो, हम कितने मजे कर रहे होते अगर ये हो जाता है इम्प्लीमेंट। बट जो भी होता है अच्छा ही होता है, आगे के फ्यूचर के लिए हो रहा है, हमें आगे बढ़ना है अब इन लोगों को जागरूक करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। ओके, मूविंग अहेड, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में क्या क्या चेंज हो रहा है, भाई ये भी तो बहुत मजेदार चीज़ है, इसमें अभी बताने वाला हूँ आपको। कि देखो जल्दी से मैं आ जाता हूँ सारे टॉपिक्स पढ़ के। ओपनिंग ऑफ हायर एजुकेशन टू फॉरेन प्लेयर, आपको पता है तो इन आवर कंट्री है ना, foreign colleges are getting permission to come here and open their campuses, kind of है ना, होता है ना फ्रेंचाइजी टाइप की। तो वहाँ के कॉलेज यहाँ आने की परमिशन हो गए हैं और यहाँ के कॉलेज भी वहाँ जाने की परमिशन हो गए। आप सोचो, ये जो बैरियर था ना पूरी हट चुकी है, एंड नाउ दे आर फ्री टू मूव। सेकेंड थिंग, एकेडमिक बैंक, भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे 2-3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे मज़ेदार होने वाली हैं, अभी आगे के स्लाइड्स में देखना। इसी की बातें कर रहा था मैं कि हाँ आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक तो फर्स्ट क्लियर हो गया कि हाँ आने जो फॉरेन वाले हैं यहाँ आ सकते हैं, फॉरेन को हम जा सकते हैं क्योंकि हमारे कॉलेजेस वहाँ पे भी हैं। तो ऐसे करके इसने एक अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी। सेकेंड थिंग इज दिस वन, नीचे वाला है लेफ्ट साइड में, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। कोई जानता है इसके बारे में, फटाफट बता दे प्लीज, हाँ ना कुछ भी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, मुझे लगता है कि आप इसलिए ज्वाइन किए हो क्योंकि आपको एनईपी की बिल्कुल नहीं पता, राइट? ऐसा है क्या? प्लीज लेट मी नो। यस, आई वांट सम आंसर्स प्लीज, गो अहेड। मैंने पूछा कि आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन के बारे में कुछ आइडिया है ताकि मैं उस लेवल तक जाके बताऊं। नो, विशाल इज सेइंग नो। थैंक यू फॉर आंसरिंग। तो ठीक है, अब सही बताऊं तो ये जानोगे तो बहुत खुश होने वाले हो आपको। मतलब कैसे खुश? आई हैवंट गॉन सो डीप। ओके, अच्छा लगता है मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊं मैंने इस तरीके से आपको इलस्ट्रेट करने की पूरी कोशिश की है कि यस आप बोर ना फील करो, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम डीप में नहीं जा रहे हैं। एटलीस्ट मैं सही बताऊँ, ये जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, एटलीस्ट ये सब जाननी चाहिए हमें। सो दैट्स वाई मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, अभी मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं पहले दिखाई देता हूँ। ओके, कहाँ गया? ये है मल्टीपल एंट्री, ये रहा। देखो जरा, देखो भाई मैंने फोटो भी ऑथेंटिक ली है कि हाँ आप विश्वास भी करो इन सब चीज़ों पे। यस, तो क्या है, अब आपको इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स सपोज दे हैड डन हिज डिड हिज काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए प्रोग्राम, वो एमबीए कर रहा था, या फिर चलो मेरा मतलब है कि मैंने इतना डीप में कभी जाने की कोशिश नहीं की। ओह ग्रेट, हाँ हो सकता है भाई कि ऑब्वियसली अभी इतनी नीड नहीं पड़ी होगी जिसकी वजह से आप इसको इतना डीप में नहीं जाने। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है। नाम से ही पता चलता है भाई सारे रास्ते खुले हैं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, ऐसा ही सिनेरियो होने वाला है। नाउ आप बताओ, अगर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में थे, ध्यान देना सारा सिचुएशन मैं अपने इंजीनियरिंग पे ले चलता हूँ, राइट?
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर इंजीनियर्स। सो आप इंजीनियरिंग फील्ड में थे, अब क्या हुआ कि अचानक से 1 साल तक किया, आपकी बहुत बुरी तबीयत खराब हुई, या यू कैन से देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन योर हाउस। डेफिनेटली बंदा क्या करेगा, ड्रॉप आउट, घर गया। 1 साल 2 साल कैसे भी करके उसने घर का सिचुएशन को कंट्रोल किया। देन अगेन ही डिसाइडेड नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। अगेन ही गो इनसाइड दिस एजुकेशन फॉर द मींस इंजीनियरिंग एनरोलमेंट, पैसे लगे, फिर से किया। बंदा 4 साल जैसे तैसे पैसे से लगा के, यू कैन फील हिज प्रॉब्लम कि कितनी दिक्कत हुई और उसके कितने साल बर्बाद हुए। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्या होगा कि अब मैं सॉर्ट आउट करता हूँ उसको जल्दी से। इस तरीके की सिचुएशंस को सॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर आप कोई सी भी डिग्री करते हो, मतलब आफ्टर 12th, तो अगर अच्छा आप डिग्री मत बोलना उसको, सबके नाम हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर अगर आपने 1 साल कोई सा भी कोर्स किया, ठीक है, और उससे आपने, अगर वो 4 साल का कोर्स था, आपने 1 साल किया और आपने छोड़ दिया, जैसे आपने इंजीनियरिंग के केस में किया, सो उसे हम कोर्स जो भी है उस कोर्स में उसका हम कहेंगे उसने एक सर्टिफिकेट हासिल किया। सर्टिफिकेट मतलब ऐरा गहरा सर्टिफिकेट नहीं, उसको नाम ही सर्टिफिकेट दे दिया गया, राइट, जैसे हम डिग्री कहते हैं। सो द फर्स्ट ईयर कोर्स आर नोन एज सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 साल के लिए काम किया, मतलब काम इन द सेंस कि आपने पढ़ाई की, आपने 2 साल के लिए कोई कोर्स में इनरोल रहे और तीसरे साल आप मतलब वही कुछ प्रॉब्लम हुई छोड़ दिया, तो फिर से अगर आपने 2 साल किया है तो आपका ये कहलाएगा एडवांस डिप्लोमा। ठीक है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अगर आपने 3 साल का कोई कोर्स किया, आपने ड्रॉप आउट कर दिया, इट विल से बैचलर डिग्री। 3 साल में ही बैचलर डिग्री मिलेगी। और 4 साल वाले को क्या बोलेंगे, बैचलर डिग्री विद रिसर्च। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन किया है। और मैं ये बताने के बाद आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, can't you think that what's going to have with our results, how the government is going to have, means how the government is going to have our results from this all 4 things and collab this and get to know about us कि हमने कितना पढ़ाई की है, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। वो बाबा हमारे सर्टिफिकेट्स थोड़ा देखेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल ना। सो डिजिटल होने के लिए आखिर उसने भी कुछ सोच रखा होगा कि आखिर हमारे इन सारे रिकॉर्ड्स को कैसे वो हैंडल करें। यस, उसका भी प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बना रखा है। सो व्हाट इज दैट, वो भी बताऊंगा। अगर कोई डाउट्स है तो मैं लास्ट में भी ले सकता हूँ, इट्स ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को कुछ रिप्लाईज नहीं आ रहे। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन मैंने बता दिया। 3 साल 4 साल की जो डिग्री होती है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर व्हाट इज दैट एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर बैचलर्स डिग्री, फोर्थ ईयर बैचलर डिग्री विद रिसर्च। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मेन जो पीछे की चीज़ें छोड़ के आया था वो बताता हूँ। ये तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन हो गया। थर्ड है यही चीज जो मैं बात कर रहा था, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अरे भाई आपका बैंक बनने वाला है, मतलब हाँ आपका एक अलग ही बैंक रहेगा, उसमें आप क्रेडिट करोगे क्या, अपने कोर्सेज के यू कैन से अपडेट्स, मार्क्स यूं कह लो। तो आपकी जो भी मार्क्स होंगे, जो मैं बात भी कर रहा था कि दैट whatever means credit you are getting in each of these years, suppose in first year you did something else, and whatever the credits you are getting, where it will go, it will go inside your academic bank of credit, and there it will be safe. Okay, it will be totally digital, right, online. So जिस साल आपने जो जो चीजें की ना वो वहाँ पे स्टैक होते जाएगा। ठीक है, और जब कभी आप 2 साल के बाद आते हो, आप चाहते हो आगे की पढ़ाई शुरू करने की, आपकी वही क्रेडिट्स एड ऑन हो जाएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि बंदे में कितना कैपेबिलिटी है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं करेगा, फिर उसको आगे उसका ग्रोथ के लिए चैनलाइज किया जाए। आई होप इट इज क्लियर नाउ, है ना। अब आता है एक और एडल्ट एजुकेशन करिकुलम। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि जैसे कि मुझे लग रहा है कि वी आर रनिंग लेट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे और भी स्लाइड्स करने हैं एंड इट्स 28। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता दूं कि एडल्ट एजुकेशन करिकुलम में क्या है कि ये 5 प्रोग्राम्स का वो है। इट होल्ड्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन। मीन्स काइंड ऑफ
कि एडल्ट एजुकेशन जो है मतलब छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे क्या क्या सीखेंगे। लिटरेसी साक्षरता के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनको न्यूमरेसी नंबर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, फिर उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, फिर उन्हें वोकेशनल स्किल्स के बारे में भी बताया जाएगा कि वो बच्चे जब एडल्ट हो जाएंगे तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रहे। फिर बेसिक एजुकेशन है ना, फिर आपका आगे की एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करनी है ये सब चीज़। ठीक है, आगे मैं आता हूँ, फिर हम बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या है जो मैंने बोला था कि आपके मार्क्स कहाँ रहने वाले हैं। सो इट्स ओवर हियर। क्या है ये कह रहा है कि यू कैन सी हियर इट विल बी अ डिजिटल एंटिटी वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टोर देयर क्रेडिट डेटा। ठीक है ना, और ये बिल्कुल बैंक जैसा ही होगा। इट्स काइंड ऑफ बैंकिंग, नेट बैंकिंग, राइट। Student will be account holders, है ना। ABC will provide service such as credit accumulation, credit transfer, oh my god, credit verification और डिग्री ऑथेंटिकेशन। मतलब इतनी सारी चीजें, मतलब जो भी हम लेन देन करते हैं अपने बैंक में वैसा हमारा क्रेडिट के साथ होगा। आई होप many of us are already aware of kind of redeem code, है ना। हम रिडीम करते रहते हैं, इसको ये भेजा तो ये कैशबैक मिला, उसको ट्रांसफर कर दिया, उधर से ले लिया, रिडीम कर दिया। ये सारी चीजें अब हमारे क्रेडिट्स के साथ होंगी, हमारे मार्क्स के साथ, राइट। अब आगे देखते हैं कि ये कहता है कि वैलिडिटी ऑफ ऑन क्रेडिट्स will be as per UGC Minister of Education guidelines। ये सारी गाइडलाइंस भी होगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर रही है तो गाइडलाइंस भी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई होप मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट स्वयं एंड नेप्टेल, वीलैब, इन सब के बारे में आपको जानकारी है या नहीं। आप इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। स्वयं के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा। स्वयं प्लेटफॉर्म, यस यस। तो आप खुद सोचो, यस यस। तो अच्छा, हाँ ठीक है, आप सब ईगर हो क्योंकि यहाँ पे जो मिलेंगे वो एग्रावेटेड रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, राइट। कि कोर्सेज वगैरह करने में एक्टिव होंगे तभी आप लोग यहाँ पर हो, राइट। सो हाँ, ये क्रेडिट मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली आगे वाले फ्यूचर को आप ही बताने वाले हो। तो अभी क्या है कि क्रेडिट जो अर्न करेंगे बच्चे, सो दैट विल हेल्प देम टू लर्न ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं, एंटेल, वीलैब एंड ऑल्सो भी कंसिडर फॉर अकोमोडेशन एंड ट्रांसफर। मतलब आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी को ऐसे करके। तो बच्चों को कैसे हेल्प मिलेगी? A student can select courses, they can combine the courses, they can choose the pace of studies, and also they can tailor their degree by making, ये सब आप देख रहे हो। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज का एक जरिया है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। चलो आगे चलते हैं। 14th में क्या है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। अब देखो क्या है, you know ना, everything is going digital, right? So the government is thinking that why not there should be a proper guideline from the technical end with the help of forming a unique body, single body, right? तो इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, एक एजुकेशन में हर जगह आपको जरूरत होनी पड़ी है, आपको जरूरत पड़नी है कि आपको पढ़ाने के लिए, आपकी टीचिंग स्किल्स को इनहेंस करने के लिए Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, am I audible? Yes, sir, you are audible, but your voice was lagging. Okay, just give me a second. I hope there was a network issue. I think I am now. No, sir, now it's clear. Okay, thanks. So, okay, I was there कि एक न्यू बॉडी बनाई जा रही है जो कि हमारे टेक्नोलॉजी लीड असेसमेंट करने में हेल्प करेगी, और ये टारगेट जो है अप्रैल 2020 तक का है। एंड दिस प्रोवाइड प्लेटफॉर्म for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance the learning, assessments, plannings, administration, everything, whatever going to be, it's all about the technology, right? So definitely there will be a body, तो ये बॉडी हमारी हेल्प करेगी। अब अगर लास्ट टॉपिक की बात करूँ तो उसमें ये जो लिखा है ना चीजें कि आपको क्या मिलेगा, कि जो भी अप्रोप्रिएट तरीके से आपको टेक्नोलॉजी को लेवल को हैंडल करना होगा, क्योंकि ये क्लासरूम प्रोसेस है, टीचर को सपोर्ट देना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें हैं, है ना। आप एजुकेशनल स्टफ को कैसे एक्सेस करोगे, है ना, आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी होगी, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, ये सारी चीज़ें टेक्निकल करना है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ बॉडी। तो इस टर्म का भी नाम याद रखना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये आपको हेल्प करेगा। अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं हल्का सा बता के इसको आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में ये वर्ड, मतलब ये आप सोच रहे हो कि सर कितना डीप में जा रहे हैं, बट
ये टॉपिक से आप मत भटकना कि सर क्या ही बता रहे हैं, बट हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी एमिनेंस मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? ये इसमें वोकेबुलरी में मतलब परेशान करता हूँ लोगों को, बट आई होप मेनी ऑफ यू हेल्प मी अ लॉट. एमिनेंस का मतलब हाँ या ना पता है कि नहीं? प्लीज टेल मी. I think eminence का मतलब Yes, yes. like significance or something like that. It's not audible. Please Yeah, repeat sorry. again. I think you had posted on the chat. Can you please write? Because it's not audible to me. Sorry. Okay. I'm waiting for the answer because I want something from your side. Yes, eminence किसी ने तो बोला at least, but it's not audible to me. Significant, very nice. Yes, yes, yes. इसी तरीके की चीजें होती हैं, बस dignity, yes, बिल्कुल. तो मैं अब समझ सकता हूँ कि yes, you know very well. तो आप ये चीज जानो, institutions of eminence means what? कि जो बड़े बड़े मान प्रतिष्ठा वाले जो कॉलेजेस हैं, लाइक IITs एंड ऑल, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने पीपीटी में लिख रखा है कि colleges with the institution of eminence tag, which includes several IITs, will now be able to set up campuses in foreign countries. जो मैंने पहले बात की थी कि फॉरेन कंट्रीज में जाके हमारे आपके कॉलेजेस एस्टेब्लिश होंगे, उनके कैंपसेस, ये यूजीसी हमें ग्रांट देगा, मतलब उन कॉलेजेस को यूजीसी ग्रांट देगा, राइट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, कि आप जाओ दूसरे कॉलेज में एस्टेब्लिश करो अपना. और एक और चीज हो गई कि द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैड लॉन्च्ड, ये स्कीम ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, और इसमें बोला गया है कि 20 इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाता है ना, आईओई को 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को अलाउ किया जाता है कि आप लोग जाओ और आप ऐसा कर सकते हो, बट उसमें 10 पब्लिक कॉलेज होंगे, 10 प्राइवेट कॉलेज होंगे, ठीक है. सेकेंड थिंग क्या है कि what will happen according to the norms, this shall be permitted to start a maximum of 3 of campuses centers in 5 years, but not more than 1 in academic year. 5 साल में 3 आप कैंपस दे सकते हो वहाँ पे, लेकिन 1 साल में 1 से ज़्यादा नहीं देते, मतलब ये कुछ रूल्स एंड रॉल है. और ये भी बता देता हूँ कि इसके अप्रूवल के लिए आपको होम एंड एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन लेना पड़ेगा. तो ओके, आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखते हैं. हाँ, ये भी एक डेडलाइन रखी गई है. मैं सही बताऊँ ना, मैंने आईओई बताने नहीं वाला था, लेकिन हाँ मैंने इसलिए बताया बिकॉज हियर timeline for implementation is something like this. Here it's saying that 20 IOEs are going to be launched for the next session, है ना. 4-year UG प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए मैंने बताया कि हाँ IOE है क्या. Now up to 2040 the education system will be completely transformed, ऐसा इनका मानना है. And MPhil, कितनों को पता है MPhil क्या होता है? ये एक नई चीज आ गई. What is the full form of MPhil? ये भी कोई पढ़ाई है क्या? Yes. Can anyone tell me? MPhil. I think it's related to philosophical approach. Again, sorry, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही. Please let me know. Yes. So, do you know Master of Philosophy is going to be closed? Okay. कोई नया एडमिशन नहीं होने वाला है. Yes, yes. Thanks for letting me know. तो अब मैं बता रहा हूँ कि आई होप दिस वाज अ काइंड ऑफ स्टेजेस टू गो टू द पीएचडी, राइट. पहले लोग एमफिल करते थे और फिर उसके बाद से पीएचडी की तरफ आगे बढ़ते थे, तो ऐसा करके हमारा कुछ प्रोग्राम होता था, राइट. बट अब वो उसको उन्होंने बंद कर दिया है ना. और उसके भी कुछ रीजंस इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं. आई होप मैंने आपको ये लास्ट मोमेंट पे ऐसा लिखा था, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं. It will adhere the international standards. मतलब एक बात बता दूं कि इसमें क्या था, एमफिल जो है ना, अगर आप कर लेते हो so it will not gonna help in further foreign countries. इसका कोई महत्व नहीं, राइट. इसलिए पहला मतलब ये था कि इन लोगों ने इसीलिए हटाया, इसका कोई महत्व नहीं था. सेकेंड थिंग, most of the students opting for a PhD program will be able to save 2 years and get that. Okay. जो लोग 2 साल इसमें इन्वेस्ट करते थे एमफिल करने के लिए, वो अब इन्वेस्ट ना करके बैचलर डिग्री के बाद ही एमफिल का जगह मतलब पीएचडी कर सकते हैं. ऐसा कुछ प्रोफार्मा बनाया है इन लोगों ने. मतलब कुल मिला के if they are replacing something, that there must be some alternative, right? So if they are replacing the MPhil, and in place of that the student can enroll in kind of, you can say, PhD program even after the graduation kind of thing. So इसलिए MPhil तो मतलब इतना जान जाओ कि MPhil हट रहा है. सेकेंड थिंग, लास्ट जो है सीएट जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल सेट अप बाय दिसंबर 2020, ऐसा माना गया है.
कहाँ तक होगा ये देखते हैं, क्या हुआ है अभी तक इसमें कुछ एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आई है। ओके, तो 18 में आके लिमिटेशन जो है मैंने पहले भी बताया था, आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि मदर टंग वाला इशू था, एक तरीके से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। लीगल चेंजेस फॉर सम प्रपोजल्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि आप एक टॉपिक था जिसके बारे में लोग उस पर भी कंट्रोवर्सी कर रहे थे। एक तो था मदर टंग का और एक था, आई होप मैं मिस कर रहा हूँ शायद, फंडिंग सीम्स अ मेजर हर्डल। हाँ, फंडिंग का भी इशू है, जो ये कह रहे हैं कि आपको 6% आपकी जीडीपी से लेंगे, बट कितने हद तक सही होता है देखते हैं। एंड बस यही सब था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने शायद से सारे पेजेस पे ये देखा होगा, मैं सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था। ये पीपीटी मैंने खुद के लिए अपने चैनल के लिए बनाई थी, और मैंने जब पीपीटी स्टार्ट किया इतना हरी में था मैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू रिमूव, बट ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। But it's all about today's session, so I hope you enjoy that and must go with some kind of. कैसा रहा, please let me know. Thank you, sir. It's a very wonderful session. We learned a lot in this session about the education policy and few more things. It is a great session. Thank you so much Thank for you so sparing your much. valuable time. Yes, yes. As students, if you have some many queries, you can just go ahead. I will be there. And yes. If not, then we can proceed. Yes, Anjali, according to you, I will do that. Yes, tell me. Organize a group informative sense. Sir, I think all the doubts are cleared of everyone. Thank you so much. Okay. So everyone, it's a humble request to all of you कि अगर आपको अच्छा लगा है, so definitely ये मेरा मतलब जो मोटो है उसको आगे ले जाने का, आप जरूर मेरे को इसमें कैरी फॉरवर्ड करना। एंड हियर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो जो आप दिख ही रहा है, तो आप उसको देख सकते हो। यू कैन गो ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड ऑल, you can just reach me out there, and I want to make a club over there so that मेरी ये इस नैया को आगे लेके जाए और थोड़ा और लोगों को समझाए। So there is a channel Academy Vela over YouTube as well। ये मैंने एक तरीके से सोशल वेलफेयर की तरह ही शुरू किया था, तो उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ। एंड यस, रोबोटिक्स के लिए मैं बहुत क्रेजी हूँ और मैं चाहता हूँ कि रोबोटिक्स क्लब जरूर बनाऊँ। तो डेफिनेटली आपका भी सपोर्ट रहना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम रोबोटिक्स भी चाहिए सर session. Your way of teaching is very easy. Thank you, Param. Thank you so much. Yes, everyone, wish you all the success. Thanks, Suraj. बहुत अच्छा था sir. Thank you so much. Oh, Anga, I just subscribed your. Thank you so much. ठीक है, फिर देखते हैं। I hope Anjali, is there kind of feedback session and all? Okay, you have already sent Yes, it. yes, sir. Okay, so fine. और भी कुछ है इसके बाद से, या फिर जैसा आप बोलोगे वैसे मैं करूँगा। इट्स माय फर्स्ट सेशन, राइट? सो दैट्स आई डोंट नो व्हाट है। No, sir, it's going to be end. Thank you, sir, for coming and giving us a talk on the most important topic. Thank you all the attendees for joining us today. So I think I'm lacking. I'm audible. Yes, Anjali. Kindly fill the attendance form and feedback form, and then you may leave the session. Thank you for joining. Have a great day ahead.